सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਵਰਲਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ। ਸੋ ਮੀਡੀਅਨ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਅਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, बट इतने इंडिविजुअल सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਨੇ, ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ, दैट इज n + 1/2, ठीक है। n + 1/2 मींस कि जिन्ने नंबर ऑफ आइटम्स ने +1 / 2। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ एक दूसरी चीज़ मैं तुहानूं दसी सी कि जो भी आपां नूं इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज दित्ती है तो आपां ने सब तो पहला उन्हां नूं देखना है कि वो असेंडिंग ऑर्डर दे विच हैगे आ, आइटम्स जिहड़ियां ने असेंडिंग ऑर्डर दे विच हैगियां कि नहीं हैगियां। सो अगर असेंडिंग ऑर्डर दे विच है नहीं हैगियां तो आपां ने पहला उन्होंने अरेंज करना है, जिद्दां कि आपां रेनफॉल वाले केस दे विच क्वेश्चन दे विच कीता सी लास्ट लैक्चर दे विच, ठीक है। तो आपां ने उन्होंने जिहड़ा है पहला असेंडिंग ऑर्डर दे विच अरेंज करना है। उस तो बाद आपां ने उहदी क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी कैलकुलेट करनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीकुएंसी तो अगर नहीं करांगे तो साडा आंसर जिहड़ा नहीं आऊगा, ठीक है। सो मीडियन मींस आपां ने मिड वैल्यू फाइंड करनी, एवरेज मिड वैल्यू, ठीक है। तो इंडिविजुअल ते डिस्क्रीट सीरीज वास्ते फार्मूला है n + 1/2। फिर जब आपां कंटीन्यूअस सीरीज की गल करनी है, कंटीन्यूअस सीरीज दे विच आपां जदों सब तो पहला मीडियन साइज फाइंड करना है, ठीक है। एंड मीडियन साइज फाइंड करने का फार्मूला है n/2, ठीक है। एंड उस तो बाद ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ L1 + n/2, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਅਪੋਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਟੂ i। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨ ਫਰੋਮ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੇਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ, ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਨੀ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਖੁਦ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਵੇਰੀਅੰਸ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣਾ, ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ n ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਆ ਉਹ ਐਕੂਰੇਟ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 4 5 4 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 9, ਠੀਕ ਹੈ। 6 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो ये आ गया साडा 189। एक बार फिर देख लो 5 4 9, ठीक है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 189। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ 14 ਹੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 74, ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 140, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਹਦਾ 144, ਦੈਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 4 3 7 ਤੇ 5 179 ਤੇ ਪਲੱਸ 10 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 189, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਮ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਸਕ੍ਰੀਟ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੀਡੀਅਨ ਸਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ n + 1/2, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो n कितना है 189 + 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 190/2, ठीक है जी। सो ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ 9 × 18 2 5 10 95। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 95 ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ 95 74 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 114 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ 95 ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 95 ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਜੋ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜੋ ਸਾਡਾ n ਸਾਈਜ਼ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 10। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਇੱਕ क्वेश्चन होर कर लेने, फिर उस तो बाद
अनइक्वल इंटरवल्स आ जान तुहानू या फिर तुहानू क्यूमुलेटिव सीरीज़ आ जाए तो वो किद्दां करनी होगी तुहानू दस्सांगी, ठीक है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ भी आपां करनी है तो इंडिविजुअल सीरीज़ बहुत ईजी हुंदी है। सो हुण इहदे विच भी देखो सानू इनकम दित्ती हुई है, मीनस कि सानू एक्स की वैल्यू दित्ती हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ फैमिलीज दित्ती है, मीनस कि सानू एफ की वैल्यू दित्ती हुई है। तो ये हुण आपां देखांगे पहला असेंडिंग ऑर्डर च है तो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर च है, जरूरत नहीं है चेंज करन दी। तो ये सिंपली हुण साडा नैक्सट स्टैप की होएगा, आपां ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, ठीक है। तो करो इत्थे आ जाएगा अपना 4, देन 6 4 10 8 6 14 ते सॉरी हाँ 6 4 10 10 8 18, ठीक है 18, देन 18 ते 5 किन्ने आ गए 23, 23 ते 2 किन्ने हो गए 25। हुण इहनूं कैलकुलेट करके देख लैंदे इत्थे भला 25 भी आंदा पिया है। 6 4 10 ते 8 18, 18 ते 5 23 ते 2 25, ठीक है। दैट मीनस कि साडा आंसर बिल्कुल करैक्ट है, ठीक है जी। हुण आपां गल करांगे नैक्सट स्टैप दी, दैट इज साइज ऑफ मीडियन। द साइज ऑफ मीडियन की है n+1/2, ठीक है। n कितना आ गया 25 +1/2, 26/2 कितना आ गया 13, ठीक है। हुण देखो 13 कित्थे आ रहा है, 10 तो ऊपर है 18 तो नीचे है, सो साडी ए वाली रेंज जिहड़ी है साडा आएगा इत्थे 13 है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट की है 1400, सो साडा आंसर की आ गया, मीडियन साइज की आ गया 1400, दैट्स इट, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज दे विच या डिस्क्रीट सीरीज दे विच बिल्कुल भी सानू कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। हुण आपां गल करांगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज की, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूअस सीरीज की हुंदी है जिहदे विच सानू क्लास इंटरवल्स दित्ते हुंदे आ, ठीक है। डेटा जिहड़ा आ ग्रुप्स दे विच डिवाइडेड हुंदा है। फॉर द वेरी फर्स्ट लैक्चर याद करो आपां कीता सीगा, ठीक है। सो कॉन्टीन्यूअस सीरीज दे विच साडे कोल सब तो पहला तां तुसीं जदों भी अपनी कॉपी दे उत्ते प्रैक्टिस करनी है तो कोशिश करो जिन्नी बारी भी तुसीं कॉन्टीन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन करना है एवरी टाइम तुसीं फॉर्मूला उहदा लिखना है कि मीडियन नूं किद्दां फाइंड करीदा। सो कॉन्टीन्यूअस सीरीज दे विच सब तो पहला आपां साइज ऑफ मीडियन फाइंड करना है n/2, इहदे विच +1 नहीं लगना। ते दूसरा मीडियन फाइंड करने वास्ते साडे कोल फॉर्मूला L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इनटू I। हुण ये फॉर्मूला जिहड़ा मैं तुहानूं इहदे विचों समझावांगी कि किद्दां आ। सो सब तो पहला सानू x दिता है, फ्रीक्वेंसी दी है, सो सब तो पहला आपां अगेन इत्थे भी की है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है फाइंड कर लैनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेने हैं, ठीक है। तो ये रह जाएगा 22, देन ये हो जाएगा 8 ते 2 10 ते 3 2 5 1 6 60, ठीक है। ये हो जाएगा 106, देन ये हो जाएगा 6 5 11 141, ठीक है यस, ठीक है। एंड ए हो जाएगा 141 ते 20 किन्ने हो गए 161, राइट। तो इनू आपां फ्रीक्वेंसी नू जिहड़ा n आ इत्थों फाइंड करके देख लीए भला 161 आंदा है, अगर ते आंदा है दैट मीनस कि साडा टेबल बिल्कुल करैक्ट बनया है। 8 9 10 ते 6 16, 16 ते 5 21, 2 ऊपर चले गया 2 2 4 3 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 105, ठीक है। दैट मीनस कि साडा टेबल तो बिल्कुल सही बनया है। इसका मतलब साडे क्वेश्चन के गलत होने की गुंजाइश जिहड़ी है बहुत घट गई है। हुण सब तो पहला आपां मीडियन का साइज फाइंड कर लेंगे n/2, ठीक है। सो n कितना साडे कोल 161/2 कितना आ गया 2 8 16 80.5, ठीक है। तो n/2 की वैल्यू साडे कोल कितनी आ गई, याद रखियो ध्यान नाल, ठीक है, गलत ना होवे क्वेश्चन। 80.5 साडे कोल वैल्यू आ गई किहदी n/2 की वैल्यू, ठीक है। सो n/2 की वो वैल्यू आपां इत्थे पुट कर देनी है। हुण देखो ध्यान नाल देखो फॉर्मूला L1 मैं इत्थे विचकार भी लिख दिंदी हां L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इनटू I। हुण ध्यान नाल देखो L1 की है इत्थे, मैं पेन थोड़ा जिहा होर चेंज कर लैंदी हां इत्थे। सो L1 की है, L1 हुंदी है लोअर लिमिट, किहदी लोअर लिमिट 80.5 देखो कित्थे आण रहा सब तो पहला 80.5 तो 60 तो ऊपर ए वाली रेंज दे विच आ रहा है, ठीक है। यानी कि तुहाडा साइज ऑफ मीडियन इत्थे आ रहा है। हुण तुसीं इनू ही रेंज नू बस कंसीडर करना, ऊपर थले सारा कुछ छड्ड दो, ठीक है। सो L1 कितना है, लोअर लिमिट कितनी है इहदी 80.5 वाली दी सामने दी देखो लोअर लिमिट कितनी है 20 है,
इत्थे 20 लिख दो, ठीक है। n/2 की वैल्यू आप ऊपर फाइंड कीती सीगी कितनी आ 80.5, ठीक है, माइनस हुण देखो ध्यान नाल इत्थे जिहड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपां लैनी है ਉਹ ਆਪਾਂ जो साडा साइज ऑफ मीडियन है उस तो इमीडिएट पिछली वाली लैनी है, ठीक है। सो वो कितनी है 60 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है इत्थे साडे कोल 46 इनटू आई की है क्लास इंटरवल दे विच जिहड़ा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 20 ते 10 दे विच 30 दा, ओ सॉरी 20 ते 30 दे विच 10 दा, ठीक है। सो इहनूं तुसीं सॉल्व कर लो 20 प्लस 80.5 माइनस 60 कितने हो गए 20.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 46 इंटू 10। तो सिंपली इनू तुसी 205 बन गया तुहाडा ये, इनू 46 नाल डिवाइड कर लो, 4 सा 184, ठीक है, पॉइंट लगना 0 लगी, अगेन होते जाएगा। सो ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ 20 प्लस 4.4 दैट इज 24.4 ਤੁਹਾਡਾ मीडियन आ गया ਕੰਟੀਨਿਊਸ सीरीज ਦਾ, ठीक है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ L1 + n/2 ਮਾਈਨਸ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਇਨਟੂ I। L1 ਕੀ ਹੈ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਕਿਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ। n/2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन लैनी है जिहड़ी रेंज अपन ने कड्डी है तो बिल्कुल इमीडिएट बैक वाली जिहड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। एंड अपॉन फ्रीक्वेंसी उस रेंज दे विच जिहड़ी फ्रीक्वेंसी आ रही है वो लैनी है। एंड 10i की है साडा क्लास इंटरवल दे विच डिफरेंस, ठीक है। तो ये हो गया तुहाडा मीडियन विद मीडियन इन कंटीन्यूअस सीरीज, ठीक है। हाउ टू फाइंड मीडियन इन कंटीन्यूअस सीरीज। एक क्वेश्चन होर इहदे नाल दा कर लैंदे आ, बाद च देखदे आ कि किस तरह डिफरेंट सीरीज दे विच इहनूं सॉल्व करना है। सो देखो सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੋ ਇੱਥੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫਾਰਮਰਸ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵਰਕਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਇਹ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਇਹ, ਐਂਡ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਡੀਅਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ 4 ਆ ਗਿਆ, 4 ਤੇ 6 10, 10 10 20, 20 ਤੇ 5 25, 25 ਤੇ 3 28, ठीक है। सो n देखो इन्ना ही आ रहा है 6 4 10 10 20 ते 5 25 ते 3 28, राइट। दैट मीनस कि साडा टेबल बिल्कुल सही बनया है। हुण n/2 की वैल्यू कितनी आ गई इत्थे सीधा ही है 28/2 दैट इज 14। हुण देखो 14 कित्थे आ रहा है, इत्थे आऊगा ऑब्वियसली 10 तो ऊपर है तो साडी सिलेक्टेड रेंज किहड़ी होगी 1000 to 1500 वाली। हुण साडा फार्मूला की होएगा मीडियन दा L1 + n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू I। हुण देखो L1 कितना आ 1000, ठीक है। n/2 आपां ने कट्टिया कितना आ 14 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है पिछले वाली 10 अपॉन f कितना है सामने वाला 10, ठीक है जी, इनटू डिफरेंस कितना आ 1000 ते 1500 दे विच 500 दा, राइट। तैनूं सॉल्व कर लो 1000 प्लस 4/10 इंटू 500 तो आ कट्टिया गया तो ये हो गया तुहाडा 4 5 जा 20 मतलब कि 200 आ गया। तो ये आ गया तुहाडा आंसर 1200, ठीक है। तो 1200 तुहाडा जिहड़ा आ मीडियन आ गया, राइट, कंटीन्यूअस सीरीज दे विच। हुण देखो इहदे विच दो गल्लां तुसीं याद रखणीआं ने, गल्लां दो जैस या नो, ठीक है। एक बार असीं जा रहे सी किते टूर दे उत्ते ते एक ट्रक दे पिछे लिखिआ होया सी गल्लां दो यस या नो, सारे टूर ते आपां ही बस रिपीट करदे रहे, उदां दा मूँह ते चढ़िया होया। एनी हाउ सो देखो जिहड़ी इहदे विच तुहानूं अगर सब तो पहला तो इनकलूसिव सीरीज आउंदी आ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਈਕੁਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
मीडियन की जो आप गल करांगे तो मीडियन दे विच अनईक्वल फ्रीकुएंसी का अगर तुहानू टेबल आंदा आ तो तुसीं उहनूं इक्वल दे विच कन्वर्ट करन दी तुहानू ज़रूरत नहीं है। ओपन एंडेड दा आंदा है तो तुहानू ईवन दैन तुहानू उहनूं की है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਮੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਡ। ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਅਨਈਕੁਅਲ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਚ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਓਪਨ ਐਂਡਡ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੇਬਲ ਆ ਉਹ ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਲਾ ਟੇਬਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੀਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਡ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ, ਚੇਂਜ ਇਟ ਇਨਟੂ एक्सक्लूसिव सीरीज। करो चेंज, मैं तुहानू दस्सिया सी की फॉर्मूला आ कि जो लोअर अपर लिमिट है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਤੇ 12 13 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ 1/2 ਹੀ ਆ ਗਿਆ 0.5। ਸੋ 0.5 ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ L1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ L2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ 11 ਚੋਂ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਤੇ 12 ਚੋਂ 0.5 ਪਲੱਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ ਟੇਬਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੋ 11 ਚੋਂ 0.5 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 10.5, 12 ਚ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੋ 12.5 ਹੋ ਗਿਆ, फिर 12.5 तो 14.5, 14.5 तो 16.5, ठीक है, 16.5 तो 18.5, 18.5 तो 20.5, 20.5 तो 22.5, 22.5 तो 24.5। ठीक है, तो ये साडा जिहड़ा आ चेंज हो गया किहदे विच, एक्सक्लूसिव सीरीज। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ 3 3 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8 8 9 17 17 ਤੇ 12 29 29 ਤੇ 5 34 34 ਤੇ 4 38 38 ਤੇ 2 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ n 40 ਆਉਂਦਾ ਹੈ, 5 3 8 8 9 17 17 ਤੇ 12 29 29 ਤੇ 5 34 34 ਤੇ 4 38 ਤੇ 2 40। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ n/2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 40.2 20। ਠੀਕ ਹੈ, 20 ਕਿੱਥੇ ਆਊਗਾ 17 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਉਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। into I, so L1 कितना है 16.5 plus n/2 कितना है 20। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली वाली लेनी है 70, फ्रीक्वेंसी सामने वाली लेनी है कितनी है 12। ठीक है, एंड डिफरेंस कितना देखो 16.5 ਤੇ 18.5 ਦੇ ਵਿੱਚ 2। ठीक है जी, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। 16.5 plus 3/12 into 2 2 6 12 3 1 3 2 जा। ठीक है, तो ये हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ 17। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ।
ठीक है, बिलो वाला भी ते अगर अबव वाला दिता या लैस दैन वाला या मोर दैन वाला। तो फर्स्ट स्टैप की है जिद्दां बाकियां दे विच कीता सीगा, सो वही फर्स्ट स्टैप इत्थे है कि पहला इनू आपां नू चेंज करना पेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे विच। अच्छा एक गल दा ध्यान रखियो, जदों तुसीं बिलो वाला टेबल बनाउणा आ, ठीक है, तो पहला फ्रीक्वेंसी इहदी नॉर्मल लिखनी है नाल, ठीक है। उस तो बाद चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुहाडी बिलो वाले च ऑलमोस्ट सेम ही सेम ही आनी है, लेकिन फिर भी तुसीं लिखना है। क्यों? क्योंकि जो तुसीं मोर दैन वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि तुसीं देखोगे कि जदों तुसीं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो नॉर्मल टेबल बनाओगे तो उस नॉर्मल टेबल तो जदों फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओगे तो डिफरेंट हो जाऊगी, ठीक है। सो एक गल दा ध्यान रखना है कि जदों भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आवे मीडियम के केस दे विच तां ओनू पहला नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल दे विच कन्वर्ट करना ही करना है, ठीक है, जो मर्जी हो जाए। सो इनू पहला आपां पेन दूजा यूज कर लेंदे आ। सो एक्स की आ जाएगा इत्थे बिलो 10 है तो किन्ने किन्ने दा डिफरेंस है 10 10 दा 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60 60 to 70 70 to 80, ठीक है। हुण उस तो बाद आपां नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का टेबल बनावांगे, ठीक है। सो 0 to 10 बिलो 10 15 है तो 15 ही रहूगा। देन 35 माइनस 15 कितने हो गए 20, 60 माइनस 35 कितने हो गए 25, ठीक है। 84 माइनस 60 कितने हो गए 14, ठीक है। 84 माइनस 60 14, नहीं सॉरी 24 यानी 24, ठीक है जी। थोड़ा जा मैडिकल स्टूडेंट है ना तां करके थोड़ा भुलेखा लग जाता नहीं हो। चलो 96 अपॉन टू एवरेज ह्यूमन होंदा, ठीक है। सो गलती माफ। सो 96 माइनस 14 कितना हो गया 6 to 4 के 2 एंड 9 to 8 के 1, ठीक है। 12 हो गया। 127 माइनस 96 मैं साइड पे गाड़ी लेनी है कहीं गलत ना हो जाए अपना, ठीक है। 7 to 6 1 9 31, ठीक है। 198 माइनस 127 1 ते 9 to 71, ठीक है। ते 250 माइनस 198 10 to 8 2 ते अपना 14 9 5 52, ठीक है। हुण अगर इनू आपां प्लस करिए, ठीक है, इनू अगर आपां प्लस करिए तो साडी वैल्यू 250 के बराबर आनी चाहिए। चलो देखते हैं भला आती है। 5 5 10 ते 4 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ते 5 25। लो जी अपना टेबल बिल्कुल सही बन गया, ठीक है। सो हुण नैक्सट स्टैप की है, फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया है। हुण इनू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी च चेंज कर दो, ठीक है। इतों पेन चेंज कर लेने आपां। सो ये काम आपां ने करना ही करना है, ठीक है। सो इत्थे आ जाएगा 15 प्लस 20, सो ये सेम ही बन जाएगा। जो बिलो वाला होएगा उहदे विच साडा सेम बन जाना, बट मोर दैन वाले च अगे देख के तुसीं चेंज हो जाना है, ठीक है। 127 198 ते 250, ठीक है। हुण देखो n अपॉन 2 साडा मीडियम साइज कितना आ, n कितना है 250 अपॉन 2 कितना हो गया 2 125.5, ठीक है। तो 125.5 वाली रेंज सानू आ वाली चाहिए है, ठीक है। हुण देखो फॉर्मूला की है साडे को L1 प्लस n अपॉन 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। L1 कितना आया 50, n अपॉन 2 कितना आया 125.5, ठीक है, माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछली वाली लैनी है 96 अपॉन फ्रीक्वेंसी कितनी है साडे कोल 31 इंटू डिफरेंस कितना साडे कोल 10 दा। करो इनू सॉल्व 125.5 to 96 करो 0.5 15 चो 6 गड्ढे 9 ते 2 29.5 50 प्लस 29.5 अपॉन 30 इंटू 10 तो सिंपली 295 डिवाइडेड बाय 31 कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ਤੁਹਾਡਾ 9 27 9 279 15 च 9 बटे 6
तो 8 चो 7 कटे 1 पॉइंट लगा, 0 लग गई। तो ये आ जाएगा 5 1 5 3 15 51 6 हाँ 5 9.5 ठीक है। तो 50 प्लस 9.5 यानी कि 59.5 ठीक है। 59.5 ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ मीडियन है। सो ये ਆਪਾਂ ਨੇ फाइंड कर लिया ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਸ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਟੇਬਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਅਨ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ अच्छा नॉर्मल टेबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਾਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਰਮਲ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੈਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ x ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਮੋਰ ਦੈਨ 30 ਹੈ more than 35 है तो नेक्स्ट 5 का डिफरेंस है तो पहला आ जाएगा 30 to 35 देन आ जाएगा 35 to 40 देन 40 to 45 45 to 50 50 to 55 55 to 60 and 60 to 65 ठीक है। हम देखो फ्रीक्वेंसी की आएगी 100 चो 86 माइनस करो कितने होंगे 40 ठीक है। 86 to 70 माइनस करो कितने हो गए 16 70 जो 52 माइनस करो 18 ठीक है। देन 52 जो 29 माइनस करो 3 ते 23 ठीक है राइट। 29 जो 11 माइनस करो 9 जो 1 8 and 2 जो 1 18 then 11 जो 3 माइनस करो 8 ਤੇ 3 ਦਾ 3। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ 100 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਲਾ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ 100 ਐਂਡ ਦੇਖੋ 6 4 10 ਤੇ 8 18 19 20 21 21 ਤੇ 8 29 29 ਤੇ 8 37 37 ਤੇ 3 40 4 5 6 7 8 9 10 चलो जी ਵਧਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਟੇਬਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਦਾ 14 ਆ ਜਾਏਗਾ 30 35 14 ਦਾ 14 plus 16 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 6 4 10 30 30 ਤੇ 18 48 48 ਤੇ 23 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8 9 10 11 4 2 6 1 7 ठीक है। देन 71 plus 18 कितने हो गए 8 plus 9 ते 7 plus 1 8 ठीक है। सो 89 plus 8 कितने हो गए 89 plus 8 97 ठीक है। एंड 97 plus 3 कितने हो गए 100। सो 100 आ गया दैट मीन्स कि अपना टेबल बिल्कुल सही बनया है। हुण n/2 कितना आ गया साडे कोल 100/2 50 ठीक है। तो 50 कितने होगा इत्थे 48 तो ऊपर ठीक है 71 वाली। सो सानू रेंज केड़ी चाहिए है 45 to 50 वाली। सो पुट करो फॉर्मूले दे विच L1 n/2 - CF डिवाइडेड बाय F into I। L1 कितना है 45 n/2 ਆਪਾਂ फाइंड कर लिया 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है पिछले वाली 48 ठीक है डिवाइडेड बाय F कितना है 23 ठीक है। सो इत्थों पता लग गया कि क्यों सॉल्व कर रहे हैं आप बार-बार ठीक है। इनू क्यों चेंज करना पैंदा है इनटू I कितना है 5 का डिफरेंस। सो देखो 45 प्लस 2 into 5 कितना आ गया 10/23 ठीक है। तो देख लो कितना आ गया तो 45 पॉइंट समथिंग आना है 0 लगा 23 4 9 ठीक है। सो ये आ गया 45.4 राइट। सो नेक्स्ट देखो
सो हुण आ गया तुहाडे कोल अनईक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। सो अनईक्वल क्लास इंटरवल च मीडियन किद्दां फाइंड करना है आपां ने। सो अनईक्वल क्लास इंटरवल दे विच आपां कुछ नहीं करना, कोई चेंज करन दी जरूरत नहीं है। सिंपली हुण आपां इत्थे फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेंज करिए। 4 10 4 14 14 ते 26 किन्ने हो गए, 6 4 10 ते 2 3 4 40 40 ते 48 48 ते 2 50, ठीक है। और इनू टोटल कर लो, 50 होना चाहिए आ 4 6 4 10 ते 8 18 इन्नी भी 2 3 4 5, ठीक है। दैट मीनस कि साडा टेबल बिल्कुल सही बनया आ। सो साडा इहदा मतलब n/2 की वैल्यू कितनी होगी 25, ठीक है। तो 25 कित्थे आएगा, इत्थे, ठीक है। सिंपली पुट करो फॉर्मूला दे विच, L1 कितना है 40, n/2 की वैल्यू कितनी है 25, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है पिछले वाली 14, फ्रीक्वेंसी कितनी है 26 इंटू आई की वैल्यू कितनी है हुण 40 ते 70 दे विच किन्ने दा डिफरेंस है 30 दा। दैट मीनस इत्थे 30 आ जाएगा। 40 प्लस 25 माइनस 14 किन्ने हो गए 11, ठीक है, अपॉन 26 इंटू 30। तो ये आ गया तुहाडा 330 डिवाइडेड बाय 26 26 13 चो 6 गड्ढे 1 2 3 4 7 7 6 13 70 26 3 6 17 32 6 7 मतलब 2 दा, ठीक है। कितने हो गए 26 2 दा 52 10 चो 2 28 ते 65 1 पॉइंट लगा 0 लगी 180 आ गया 26 ठीक है। तो ये आ गया 12.6। सो 40 प्लस 12.6 ये आ गया तुहाडा 52.6, ठीक है। सो अनईक्वल क्लास इंटरवल दे विच आपां ने कुछ नहीं करना, सिंपली आपां ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिहड़ी है फाइंड करके आपां ने उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देना है, राइट। नैक्सट देखो लास्ट जिहड़ा तुहाडा हैगा ओपन एंडेड। सो ओपन एंडेड च मैं तुहानूं किहा सी कुछ सिर्फ और सिर्फ जो इंक्लूसिव सीरीज आती है तुहानूं एक्सक्लूसिव च चेंज करना है, एंड अगर क्यूमुलेटिव सीरीज आती है तुहानूं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टेबल च कन्वर्ट करना है। बाकी ये भी इहदे विच कुछ भी चेंज नहीं करनी है। सो इहदे विच भी ओपन एंडेड च भी आपां सिंपली हुण की करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, ठीक है। 2 6 + 2 8 8 10 18 18 ते 7 25 25 ते 5 30, ठीक है। तो इनू प्लस कर लो, n 30 होना चाहिए 6 2 8 8 10 18 18 ते 7 25 25 ते 5 30, ठीक है। n/2 कितना आ गया तुहाडा 15, ठीक है। तो 15 कित्थे आएगा इत्थे फॉर्मूले दे विच पुट करो 60 प्लस n/2 कितना है 15 माइनस पिछले वाली फ्रीक्वेंसी देखो कितनी है 8 अपॉन f कितना है 10 इंटू डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। 10 10 कट्टिया गया 60 प्लस 15 चो 8 कट्टे कितने हो गए 7। सो आंसर की आ गया तुहाडा 67, राइट। तो ये भी आपां कुछ नहीं किया। सो कितना ईजी है, बस फॉर्मूले याद रखने हैं तुहानूं। हुण आ वाला जिहड़ा क्वेश्चन हैगा इहदे विच मीडियन फाइंड करना, एक्सक्लूसिव सीरीज दित्ती हुई है, कुछ नहीं करना हैगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कट के तुसीं अपना आंसर कड्डो। सो इहदा मैं टैलीग्राम ते वैसे आंसर पोस्ट कर दांगी, ठीक है। अदरवाइज ट्राई करो कि खुद करन दी, ठीक है जी। सो इस तो बाद जिहड़ा अपना मीडियन हजे खत्म नहीं होया, मीडियन दा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैगा आ, ठीक है, जिहड़ा कि इस तो बाद आपां ने करना आ, एंड द टॉपिक नेम इज पार्टीशन वैल्यूज, ठीक है। बहुत ईजी टॉपिक है, कोई औखा नहीं हैगा, ठीक है जी। सो पार्टीशन वैल्यूज करांगे आपां कि किद्दां आपां जिहड़ा आ मीडियन दे विच अगर सानू क्वार्टाइल दी या सानू डेसाइल दी या सानू परसेंटाइल दी जिहड़ी प्रपोर्शन है फाइंड करन वास्ते कहंदे आ ते आपां किद्दां करनी। सो दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच।